إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنهم عليكم بالصالحين صلوات اللهم صل على محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق سارا آواز سے اللہم صلی علی محمد محمد مولین ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد محمد قبل اس کے کہ علامہ خطاب فرمائیں آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سے آگے بڑھائیے تاکہ بعد میں جو مومنین آ رہے ہیں وہ بآسانی اندر آ سکیں. آپ سے میں درخواست کروں گا درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ مل کے بیٹھ جائیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. آگے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ جگہ بن جائے چونکہ موسم اس قسم کا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بارش آ سکتی ہے. آگے آ جائیے تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیے آپ حضرات. پیچھے جگہ رہے گی تاکہ مومنین بآسانی آ سکیں گے. بہت شکریہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی پہلی 10 آیات کو تلاوت کیا ہے جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے والسماء ذات البروج، جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے ترجمہ ہے قسم ہے سما کی. سما یہاں حقیقی معنی میں ہے جس کا معنی بلندی ہے. اللہ کی کمال بلندی کو مصطفیٰ کہتے ہیں.
اللہ یہاں ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی قسم کھا رہا ہے، ان آسمانوں کی نہیں، مادی آسمانوں کی نہیں، عالمین کے اسماء کی قسم۔ آسمان وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے، اس کی قسم کھا رہا ہے۔ جو نئے حضرات ہیں پریشان ہو رہے ہیں، ذات البروج وہ برجوں والا ہے، اور علم حیات میں برج ہی 12 ہیں، اور یہ سما کون ہے جس کے برج 12 ہیں، اور جیسا سما ہوگا ویسے برج ہوں گے۔ وہ 12 برج 12 امام ہیں۔ بات سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ اللہ رسول خدا اور 12 امام، بسم اللہ سے 12 اماموں کی قسم کھا رہا ہے، 12 اماموں کی قسم کھا کے فرماتا ہے۔ دوسری قسم میں یہ چیز سامنے آ جائے گی، والیوم الموعود، فرمایا مجھے قسم ہے الیوم کی جس کا وعدہ کیا گیا۔ وہ الیوم کون سا الیوم ہے؟ وہ عید کا دن نہیں، ہماری عیدوں کا دن نہیں، وہ توحید کی عید ہے۔ اس الیوم کو عید غدیر کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سمجھ گئے؟ عید غدیر میں اللہ نے فرمایا، جب من کنت مولا کا اعلان ہوا، اللہ نے فوراً فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ دنیا والوں میں کہوں جس کا دن قابل قسم ہو تو پھر دن والا کیسا ہوگا؟ الیوم کی قسم جو جس کا وعدہ کیا گیا، وشاہدوں و مشہود، اور ایک گواہ کی قسم۔ مجھے بتائے آپ پریشان ہوتے ہیں بار بار دہرانے سے، ضروری ہے دہرانا۔ ایک گواہ کی قسم اور ایک مشہود کی قسم۔ شاہد کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مشہود کو علی مرتضیٰ کے۔ مشہود جناب علی ہیں، شاہد رسول خدا ہے۔ یہ کہہ کے جواب قسم کیا آیا؟ قتل اصحاب الاخدود۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قتل کر دیے گئے غم امام حسین میں رونے والے۔ ہائے ہائے ہائے، اخدود وہ خد کی جمع ہے۔ یہ جگہ جہاں سے آنسو گر کے داڑھی سے نیچے ٹپکتے ہیں اسے خد کہتے ہیں۔ اصحاب الاخدود قتل کر دیے گئے۔ کس میں قتل ہوئے؟ النار ذات الوقود، ایسی آگ میں۔ یہ پہلی مرتبہ واقعہ ہے کہ جو ایندھن اور لکڑی سے جلائی گئی تھی، اس آگ میں یہ 20,000 مومنین جلائے گئے۔ اللہ اس جلانے کا اعلان کر رہا ہے کہ مومنین کو جلایا گیا، ٹھیک ہے، جلائے گئے۔ کیسے؟ اب ان کی کیفیت کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اذہم علیہا قعود، اور وہ جلانے والے ان خندقوں کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ قعود مانے قائد سے بیٹھے ہوئے، عین سے ہے، قائد عین والا ہے، خیال کرائے، حمزے والا نہیں، قائد قعود سے، سجود و قعود جو ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو مومنین کے ساتھ جلانے والے فعل کر رہے تھے، یفعلون شہود، انہیں دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں ذرا بھر بھی رحم نہیں آیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے جب انہوں نے ان پہ، ہمارے مومنین پہ رحم نہیں کیا، اللہ تو رحیم ہے مومنین کے لیے اور رحمان ہے عالمین کے لیے، پھر اللہ ایسوں کو جلانے میں بھی رحم نہیں کرتا۔ پھر وہ جلائے گئے، یعنی یہی جو آدمی جلانے والا تھا وہ بعد میں سارے، کل میں نے بیان کر دیا، وہ بھی جلائے گئے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وما، اب ان کے جلانے کا سبب کیا تھا، کیوں جلائے گئے؟ قرآن کہتا ہے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، نہیں وہ ان کو نہیں برا لگا جلانے والوں کو۔ نئے حضرات کے لیے تو بات نہیں ہے، میں کیا کروں، نہیں برا لگا جلانے والوں کو۔ آخر کوئی برا لگا تو انہوں نے جلایا، کیا برا لگا؟ الا، مگر یہ برا لگا، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ ان مومنین نے اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، اس عزیز و حمید پر ایمان لے آئے۔ تفصیل سے میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ عزیز و حمید کون ہے؟ توجہ فرمائے، بات کو آگے بڑھائیں۔ عزیز و حمید کے بارے میں فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ حمید و عزیز ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ زمین و آسمان کے ملک اس کے لیے ہے، لہو ملکی، لام ملکیت کا ہے، تملیک میں ہے، زمین و آسمان اس کے ملکیت میں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر شہید، حاضر و ناظر گواہ ہے۔
ये बात समझ आ रही है? अल्लाह गवाह है, हाजिर और नाजिर गवाह। शहीद माने, कल 2 दिन से मैंने अर्ज किया, शहीद माने शाहिद और शहीद। अल्लाह शाहिद नहीं, शहीद है। आले मोहम्मद शाहिद भी हैं, शहीद भी हैं। इनको 2 कमाल दिए, ये शाहिद भी हैं, शहीद भी हैं। अल्लाह फ़कत शहीद है, शाहिद नहीं। इनको शहीद बनाया, इसको बहस करते हैं। अगली बात, अगली मैं आज को आगे चलाते हैं, गौर फरमाएं, ये सुनना है मेरे भाइयों। इन्नल्लज़ीना, अब अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मोमिनीन वल मोमिनात। जरा आप बुलंदतर सलवात पढ़ दें, तशरीफ रखें तो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी बुलंदतर सलवात पढ़ दें जब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या अली इन्नल्लज़ीना, बेशक अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ीना वो लोग, तवज्जो फरमाएं, इन्नल्लज़ीना बेशक लोग, अल्लज़ीन जमा की लफ्ज़ है, इससे मुराद लोग हैं। बेशक वो लोग, फ़तनुल्लज़ीना, फ़तना फ़तना फ़तनु, फ़तनु के माने हैं फितने में डालना। वो लोग जिन्होंने फितने में डाला, तवज्जो फरमाएं, आज एक खास बात कहनी है बाबा, फितने में डाला, जिन लोगों ने फितने में डाला, किनको? मोमिनीना वल मोमिनात, मोमिनीन को भी फितने में डाला और मोमिनात को भी फितने में डाला। अब मालूम होगा मोमिनीन के साथ मोमिनात भी उस फितने में की जद में आ गई है। उन लोगों ने, तवज्जो फरमाएं, उन लोगों ने फितने में डाला, किनको? मोमिनीन को और मोमिनात को। सुम्मा लम यतूबू, फितने में डाल के इस अमल से तौबा नहीं की। साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं, जरा आप कराची का ये मजमा है, तशरीफ रखें सरकार, तशरीफ रखें। उन्होंने फितने में डाला, बैठने दे मेरा पुत्र, बैठने दे, सही को बैठने जगह दे दो। फितने में डाला उन्होंने, मेरी तरफ देखे बाबा, बहस करते हैं अभी, फितने में डाला, ये फितना क्या है इस पे बहस करते हैं। फतनुल मोमिनीना, उन्होंने फितने में डाला, किनको? मोमिनीन को, वल मोमिनात, और बीवियों को, उनको भी अल्लाह मोमिन कह रहा है, उनको मोमिनीन और उनको मोमिनात कह रहा है। अब ईमान की जिम्मेदारी तौहीद की है, इनकी नहीं, क्योंकि अल्लाह इनको मोमिन कह रहा है। और वो मोमिनीनो मोमिनात को फितने में डाल रहे हैं, मुसलमीन को नहीं। अभी बहस करते, मुसलमानों को नहीं, लफ्ज़ मोमिनीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीयुल वलीयुल्लाह ईमान है। तो जो फरमाए मेरे साथ हो जाए, खुदा के वास्ते साथ हो जाए। देखिए, इमाम के मानने से, उलिल अम्र के मानने से ईमान शुरू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीयुल वलीयुल्लाह ईमान है। तौहीद इस्लाम में आती है, अली ईमान में आता है। सुनते हैं। ईमान पर मैंने अर्ज किया, ईमान पर जजा मिलती है, अमल पर अजर मिलता है। अमल को शरीयत कहते हैं, अकीदे को दीन कहते हैं। दीन मरकज इबादत होता है, शरीयत तरीका इबादत होती है। शरीयत में लचक है, 4 के 2 हो सकती है। सुनते हैं। शरीयत 4 की 2 हो सकती है, यानी रोजे माफ हो सकते हैं। शरीयत में माफी है, मगर अकीदे में, दीन में माफी नहीं है। समझ आ रही है मेरे भाई? अकीदे में माफी नहीं है। मैं फिर जुमला कहूं, शरीयत, जहां तक मेरी आवाज और जल्दी बात में आगे बढ़ाऊं, शरीयत बालिग होने के बाद शुरू होती है, दीन पैदा होते ही कान में आजान।
हैदरी। खुश हो जाए भाई, खुश हो। अब देखना है वो फितना है क्या है। फितना क्या? ठीक हो गया ना, इतनी काफी हो गया। इन्नल्लज़ीना फतनुल मोमिनीना, वो लोग जिन्होंने मोमिनीन को फितने में डाला, वल मोमिनात, और मोमिनात को फितने में डाला। डाला मैं कह रहा हूं, इरादा नहीं, डाला। फतनु फेल है, फेल माजी खबर दी जा रही है। फितने में डाला, डाल के सुम्मा लम यतूबू, फिर नादिम नहीं हुए, तौबा नहीं की। फितने में भी डाला, तौबा कर लेते। तौबा ये होती है कि पिछले गुनाह से नादिम, आइंदा ना करने का आज़म। तौबा, तौबा का नाम तौबा नहीं, कान पकड़ ले तौबा तौबा तौबा, ये तौबा नहीं। पिछले अमल से नादिम, नादिम समझते, नादिम हो जाना, और आइंदा वो अमल न करने के आज़म का नाम तौबा है। इन्होंने फितने में डाला, बहुत बड़ी बहस करने लगे हैं, फितने में डाला मोमिनी मोमिनात को। सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा नहीं की, नादिम नहीं हुए। अब जब नहीं हुए, अल्लाह कहता है फलहुम अज़ाबो जहन्नम, इन्हीं के लिए अज़ाब जहन्नम है। फलहुम फे नतीजे की आई, बस इन्हीं के लिए। फलहुम अज़ाबो जहन्नम है, पहला अज़ाब उसका जहन्नम है, जहन्नम का अज़ाब। दूसरा वलहुम अज़ाबुल हरीक, और दूसरा उनके लिए जलाना, आग से जलाने वाला अज़ाब। मालूम होता है जो भी कोई फितने में डालता है और डाले भी मोमिनीन को या मोमिनात को, अल्लाह क्या फरमा रहा है? तौबा ना करे तो तौबा ना करने के बाद क्या नतीजा होगा? उसके लिए जहन्नम का भी अजाब है और जलाने का भी अजाब है। मालूम हो गया यहां दुगना अजाब है। अकेला जहन्नम में डालना काफी नहीं, उनके लिए जलाना भी अजाब में आता है। ऐलान हो गया वाला हम अजाबुल हरीक, अब उनके लिए दो अजाब है। अब दुनिया ढूंढे वो फितना क्या है। हाय 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 हाय। यार शरीयत में किसास एक होता है, दुगना नहीं होता। अगर किसी ने कत्ल किया है तो एक दफा ही कत्ल करना है ना यार। हाथ काटा है तो किसास हाथ का होगा, एक मर्तबा किसास है। यहां अजाब दुगना क्यों है? खुदा जाने उस फितने में कौन सी शय है। उसके लिए जहन्नम का अजाब भी है, फौरन जहन्नम का अजाब, फौरियत की है। फलहुम अजाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। वलहुम अजाबुल हरीक, और उन्हें जलाने, हरीक हर से गर्मी, गर्मी को कहते हैं, जलाने वाला अजाब भी उन्हीं के लिए है। अब हम ढूंढते हैं मेरे भाइयों, मिल के मेरे साथ हो जाएं, हम ढूंढते हैं कि वो फितना क्या है। फरमाएं आप साहिबान तशरीफ फरमाएं, मुझे फितने के बारे में फरमाएं। फितना लुगत में कहते हैं, लुगत में अब मैं बात शुरू करना हूं। फितने के लुगवी माने हैं सोने को आग में डालना। हाय हाय, बात पता नहीं कितनी ऊंची शुरू हो गई। हाय, फितना के माने हैं फितना, ठीक है, सोने को आग में डालना। वो तो पहले से सोना है, अब इन्होंने आगे जल्दी लिख दिया है ताकि खरा खोटा मालूम हो जाए। चलो कोई हर्ज नहीं, ये लिखा मैं इसको अभी यही मैं रोकता हूं उनको। मैं अभी यही तर्जुमा करूंगा कि उन्हें बिस्मिल्लाह से, उन्हें सोने को आग में डालना, ठीक है। नंबर 2, फितने में शिद्दत का होना जरूरी है। समझा दूं आप, अब जैसे इंतजार में बैठे हैं, अभी बहस कर। फितना, इसमें शिद्दत का होना जरूरी है, होना। और फितना, फितना तवज्जो फरमाए, फितना वो होता है
जिस पर फौरी अजाब आना जरूरी है। जिस फितने के इस्तेहकाक का, सजावारी का नाम है अजाब। यानी इधर वो मेरी तरफ देखे जाते, इधर फितना हो उधर अजाब। अब अल्लाह ने, मैं बात जुमला कहते समझ आ जाएगी बात आपको। अब अल्लाह ने कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, मेरा हबीब जब तक तू इस कौम में है, उम्मत में है, इन्हें अजाब नहीं दिया जाएगा। जब अल्लाह ने वादा किया कि अजाब नहीं दिया जाएगा, तो फिर देखना यह है कि जिंदगी या रसूल में अजाब आया कैसे। अजनी समझ आई बाबा? बेदार होके समाज फरमाएंगे यार बहुत बहुत ऐसे बैठी हुई चल चल रही, हिलते ही नहीं। एक जिंदगी रसूल में अजाब कब आया? देखे, नमाज का तर्क हो जाना या नमाज ना पढ़ने से गुनाहगार होता है, अजाब नाज़िल नहीं होता। अभी बहस करूंगा, मैं अभी बहस करेंगे। अजाब कब नाज़िल हुआ? जब ऐलाने विलायत हो गया। अब तो आप समझ गए मेरे जुमले को। हाय 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 मेरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार ऐलाने विलायत हो गया। वो कौन आया था रसूल के पास? हारिस इब्न नौमान फाहरी। मौला ये अली को जो आपने मौला बनाया है, फरमाया मैंने अपने हुक्म से नहीं बनाया, उसके हुक्म से बनाया है। उस मलून ने क्या कहा? मैं इसको नहीं मानता। बस कहा ना नहीं मानता, यानी इनकारे विलायत किया, फौरन अज़ाब आया। शायद सुनते हैं मेरे साथ? है बड़ी आलिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक है, अब यहां से हमें थोड़ा सा इशारा मिल गया कि फितने में ज्यादा ताल्लुक इनकारे विलायत अली है। इनकारे विलायत अली है। लेकिन अल्लाह ने माल और औलाद को भी फितना कहा। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन। तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए क्यों, घबरा क्यों रहे? फितना है। इसलिए जनाब अली अलैहिस्सलाम, तफसीर साफी देखें, किनारे पे तफसीर में भी लिखा हुआ है, किनारे पे सरकार अली फरमाते हैं, लोगों कभी ये ना दुआ मांगा करो, अय अल्लाह मैं फितने में तेरी पनाह चाहता हूँ। फितने में तो खुद मुब्तला है, तो पनाह क्यों लेना है? औलाद फितना है या नहीं? माल फितना कुरान कह रहा है या नहीं? कौन है जो इनसे मोहब्बत नहीं करता? करता है या नहीं? मैंने पहले दिन ये सुनाया था सारा आपको, यार मैं दोहराना नहीं चाहता। फितना है। कौन है जो ये फितना दिल में नहीं रखता? माल की मोहब्बत है या नहीं है? औलाद की मोहब्बत है या नहीं है? सरकार ने फरमाया ये दुआ ना मांगा करो कि मैं फितने में तेरी पनाह चाहता हूँ, वो तो फितना उसके अंदर मौजूद है। बल्कि दुआ ये मांगो, अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिका मिन मुज़िल्लातिल फितने, वो फितना जो मुझे सिरात मुस्तकीम से हटा दे, ऐसे फितने में तेरी पनाह में आता। और ये समझ आ रही है जनाब? अब यहाँ फितने से मुराद सिरात मुस्तकीम को हटा देना। मैं फिर जुमला कह दूं, अब ढूंढे सिरात मुस्तकीम कौन है? जनाब अली फरमाते हैं, नहनो सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, हम ही सिरात मुस्तकीम है। अल फितना तो, अब मैं आयत दूसरी पढ़ रहा हूं जनाब, अल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, दूसरा पारा, वक्तलूहुम मिन हैसु सकिफ्तुमूहुम
हुजूर जहाँ भी ये मिले दुश्मन ऐसे उनको कत्ल कर दो। वाखरजूहुम कमा अखरजकुम, इन्हें तुम निकाल दो जैसे तुम्हें उन्होंने निकाला। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, ये फितना कत्ल से भी ज्यादा संगीन है, खूरेजी से भी ज्यादा संगीन है, फसाद बर्पा करने से भी ज्यादा संगीन है। मालूम हो गया असल फसाद ही ये फितना बर्पा करना है। इससे काबिल वाली आयत में पढ़ता हूँ आपको मालूम हो जाए। वयसअलूनका अनिल, घबरा तो नहीं रहे आप? ऐसी सलावत पढ़ें तवज्जो हो जाए, ना परेशान होते हैं ज्यादा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है नहीं आलिया, मेरी बात समाज फरमाए खुदा के वास्ते। वयसअलूनका अनिल अहिल्ला, अहिल्ला जिसे हिलाल आप कहते हैं, अरबी में लफ्ज़ ज़बर से होता है, आप हिलाल कहें ठीक है, उर्दू में होती है। हिलाल कमेटी है या नहीं? चांद नजर आए या ना आए, मिंबर तो है ना, ठीक अच्छा। पहले जो दो चांद है ना, इन पहली और दूसरी तारीख को हिलाल कहते हैं, आगे तीसरी को कमर कहते हैं, चलता चलता 14वीं को बद्र कहते हैं। कान्नहुल बद्र फी लैलत तमाम ही व कमाल, है 14वीं का चांद। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, मेरा हबीब तुझसे आके लोग इस एक चांद के उतारों चढ़ाव के बारे में, अहिल्ला के बारे में सवाल करते हैं। कुल है या मवाकीतो लिन्नास वल हज, खुदा गौर नहीं किया गया, नहीं किया, कुरान पे तवज्जो नहीं फरमाई। कुल मेरा हबीब कह दो मवाकीतो लिन्नास वल हज, ये लोगों के मियादों के पूरा होने के लिए है। इस तारीख को मैं दूंगा, इस तारीख को आऊंगा, ये लोगों के मियादों का वक्त। वल हज्जा, और ये चांद जो बदलते हैं इसमें हज के लिए चांद बदला जाता है। अब मेरा सवाल है आप पर जनाब, इतनी बड़ा मजमा तशरीफ फरमाए, हज का अहम रुकन क्या है? ये खाना काबा का चक्कर लगाना अहम नहीं है, तवाफ सफा मरवा में भागना नहीं है, कंकर मारना ना, ये हज के लिए चांद का ऊपर आना जाना। हज के लिए क्या है? हज में क्या लेना चाहता है अल्लाह हमें? यारा मेरी तरफ देखेंगे, खुदा के लिए दर दर ना देखें। पहले मेरी बात समाप्त फरमाएं, बेशक आपको मुझसे ज्यादा आता है, लेकिन मेरी बात सुन ले मेरा भाई। जब हज के लिए ये चांद का उतारो चढ़ाओ है, तो हज कैसे बना है? कैसे बना है बाबा? जिसे आप हज मनाते हैं, हज किससे मनाया गया? हज मनाया गया है, मैं जुमला कहूं, वफदैना हो बेज़िबहिन। अगर आज जनाब इस्माइल से शहीद कर दिए जाते, ज़बा हो जाते, तो हज होता? मेरे ख्याल नहीं यार, नहीं मुताला नहीं फरमाते। जनाब इस्माइल बचे या नहीं बचे? तो फिदिया किसका आया? दुम्बे का। किसके बदले में? ज़ेब अजीम कौन है? इमाम हुसैन। मालूम होता है इमाम हुसैन ने, बेटे ने बाप को बचाया है। अगर इमाम हुसैन ना होते तो इस्माइल तो ज़बा हो गया था। ज़बा हो जाता तो हज कहां से आता? असल हज का मरकजी नुक्ता ही हाय अजमत हुसैन है। हज पे जाके हुसैन को पहचानो। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब लंबी बात है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। वक्त के हवाले से हज का अहम रुकन क्या है? वह फदैना हो बेज़िब है ना। ज़ेब अजीम कौन है? इमाम हुसैन। इसलिए रसूल ने फरमाया, अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बा हो जाते, रसूल होते, सरकारे दो आलम होते, यार क्यों परेशान क्यों है? मैं क्या कह रहा हूं? ना होते। अभी इसीलिए रसूल ने, देखे रसूल की आमद का सबब कौन है? इमाम हुसैन।
जनाब इस्माइल की आमद का सबब कौन है, बका का सबब कौन है? इमाम हुसैन। इसलिए रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब हुआ? मैं सबबे वजूद हूँ, हुसैन मेरी सबबे बका है। अगर मैं ना होता तो हुसैन ना होता। या समझ आई बाबा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल खुदा सबबे वजूद है और इमाम हुसैन क्या है? सबबे बका। आप जो रिसालत बाकी है किसके सबब से है? हाय 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 हाय। अब उलमा ने यही तो फरमाया है कि 3 शाबान से लेकर 61 हिजरी तक, 3 शाबान को मेरे आका की आमद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, 3 शाबान से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से। आपको देर से समझ आते हैं शाहजी मैं क्या कह रहा हूं? 3 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक हुसैन रसूल से, 61 हिजरी से लेकर कयामत तक रसूल हुसैन से। हज का ये मकसद है बाबा, ये है हज का मकसद। इसी के साथ यसलूना का अनिल कुल है या मवाकीत लिन्नास वल हज लैसल बिर्रो। दुनिया वालों, अल्लाह क्या फरमा रहा है? लैसल बिर्रो बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा। ये नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में पिछवाड़ों से आओ। अच्छा, अल्लाह को इतना भी पता नहीं कि आते कैसे होते। हाय 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 हाय। लैसल बिर्रो, नेकी नहीं, हाय हाय, ये नेकी नहीं। अंतातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कि तुम घरों को पिछवाड़े से आओ। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, बिरने की ही विलायत अली है। नहीं समझ नहीं आया आपको? ना 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 ना। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, बिर बिर क्या है? बिर है ही तकवा। और तकवा कैसे शुरू होता है? इकरार विलायत अली से। ना ना नहीं नहीं, मजल से आदमी बना करे खुदा के लिए, माहौल मजल से वाला नहीं है। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा। लोगों, घरों के दरवाजे से आया करो, पिछवाड़ों से नहीं। हाय 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 हाय। अब मेरा इमाम से पूछा गया मौला ये दरवाजों से आने का क्या मकसद है? फरमाया जो हमारी विलायत का इकरार करता है वही दरवाजों से आता है। हाय 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 हाय। समझ रहे हैं मेरे भाई? हाय समझ रहे? हाय नहीं समझ आई बाबा? थोड़ी सी इसलिए जो भी हमारी विलायत का इकरार करता है वो दरवाजों से आता है, जो इनकार करता है वो पिछवाड़ों से आता है। अजय नहीं समझ आई? हाय 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 हाय। पिछवाड़ से वो आते हैं जो इनकार विलायत करते हैं। इसलिए फरमा रसूल ने नहीं फरमाया, जनाब अली फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। अना दारुल हिकमत है वालियन बाबहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कैसे आओ? दरवाजों से आओ, पिछवाड़ों से ना आओ। गौर पर पिछवाड़े इनकार विलायत अली इब्न अबी तालिब, ठीक हो गया? इनकार विलायत अली इब्न अबी तालिब यहाँ तक पहुंच गया। जरा बात को मैं थोड़ा वल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, कत्ल से ज्यादा सख्त है, सख्त है फितना। हुरेजी से ज्यादा सख्त है। वल फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, कुरान कह रहा है, दूसरे पारे में मैं पढ़ रहा हूँ। फितना ज्यादा सख्त है।
اچھا اب قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، میرا حبیب اتنا قتال کرو کہ فتنہ رہے ہی نہ۔ غور نہیں فرما رہے، کوئی منکر ولایت رہے ہی نہ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب 12واں آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، جب 12واں آئے گا پھر کوئی ایسا نہیں رہے گا۔ بالکل اقرار ولایت علی ابن حتی لا تکون فتنۃ قاتلوہم، ان سے قتال کرو، کوئی فتنہ رہے ہی نہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فقط اللہ کا دین رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اللہ کہتا ہے زیادتی نہ کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ رک جائیں ٹھیک ہے، فَلَا عُدْوَانَ، تم زیادتی نہ کرو، إِلَّا، مگر زیادتی ہوگی، عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالمین پہ زیادتی جاری رکھو۔ ظالمین کون؟ کیوں پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں ایسا کہتا ہوں، آپ کہتے پتہ نہیں کوئی شے نہیں ہے۔ ظالمین کون؟ پوچھا کہ مولا ظالمین کون؟ خدا کی قسم ظالم ہی وہ ہے جو جناب علی کی ولایت کا انکار نہیں کرتا۔ غور فرمایا آپ نے؟ ازلم، کل میں نے ازلم کی لفظ کہی تھی، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ انکار کرنے والا، اسی کو کہتے ہیں فتنہ۔ فتنہ ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو بھی روکتے ہیں مومنین و مومنات کو اے عقیدہ ولایت علی سے۔ اب سمجھ آئی ہمیں؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مومنین و مومنات کو اس عقیدے سے روکتے ہیں، فلم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، اوئے ہوئے ہوئے، ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ایک جہنم ہے اور دوسرا، لمبی بحث ہے، میں نے وہ چھوڑ دیا درمیان سے، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا روز ہی۔ ان کے لیے جلانے کا عذاب بھی ہے۔ بس بابا اسی سے بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ منصور کا زمانہ ہے، کتب راوندی ایک بڑا مشہور آدمی ہے، کتب راوندی روایت کرتا ہے، توجہ فرمائیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے منصور دوانکی کو جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلی اللہ محمد و آل محمد، کل بھی میں نے واقعہ امام کا بیان فرمایا۔ امام اس وقت کوفے میں اور بغداد میں مسجد کوفہ میں درس دیتے تھے، 90,000 آدمی آپ کے درس میں موجود، علماء موجود ہوتے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان دنوں کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی گیا، اس نے جا کے منصور کو کہا، منصور امام تو تیرے خلاف لوگوں کو ابھار رہا ہے، اکسار رہا ہے، بڑھنگیٹا کر رہا ہے، اس نے جھوٹ بہتان باندھا، تاشا وہ تو ایسے کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس نے امام علیہ السلام سے بولا کہ بات کہی، بولا ایسے ایسے مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ لوگوں کو اکساتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے۔ اس نے کہا وہ آدمی لے آؤ جس نے کہا تھا، وہ آدمی سامنے آ گیا، اس نے کہا صحیح آپ نے کہا ہے۔ سرکار نے فرمایا قسم اٹھائے گا؟ غور نہیں فرمایا، وہ سمجھ رہا تھا قسم کوئی معمولی شے کا نام ہے، اے خدا کی قسم، اور یہ کہنا شروع کیا۔ سرکار نے فرمایا جو لفظ میں کہوں ویسے قسم کھاؤ۔ ہائے ہائے، ایسے خدا کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، جیسے میں کہوں ویسے قسم کھاؤ۔ اس نے کہا ہاں آپ کے لفظوں میں کہہ دوں گا۔ وہ تو اچانک بے باک ہو گیا، آپ کے لفظوں میں کہہ دوں۔ سرکار نے فرمایا کہہ وَإِن كُنْتُ كَاذِبًا عَلَيْكَ إِن كُنْتُ كَاذِبًا عَلَيْكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ وَأَلْجَأْتُ مِنْ حَوْلِي وَقَوْلِي۔ تو یہ کہے، یہ لفظ کے ترجمہ سنا دوں میں آپ کو، تو یہ کہے اگر میں نے ان کے خلاف جھوٹ بولا ہے، بہتان معاذ اللہ بہتان تراشی کی ہے نا اس نے، تو میں اللہ کی قوت اور طاقت سے بری ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، اور اپنی قوت و طاقت کے حصار میں آ گیا۔ بس یہ کہنا تھا۔ اس نے جب جو ہی یہ لفظ ختم کیے، میرے امام نے فرمایا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اسے یہی موت دے دے، یہی موت دے دی۔ بس یہ امام کا کہنا تھا۔ وہ کھڑے وہیں گرا،
वही खत्म हो गया, फिन्नार हो गया, वही मर गया ना। जिस वक्त मंसूर घबराया, सरकार आप मुझे माजरत करने लगा, सरकार मैंने आप, सरकार ने फरमाया काफ़ी दिन हो गए, हाय 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 हाय, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे मदीने के लिए वापस कर दो। इसे इजाज़त दे दी। वो आदमी को उसके वरसा ने भी, वरसा ने मेरी तरफ देखे भाई, वरसा ने आके इमाम से माजरत की। सरकार ने फरमाया ये इसलिए थोड़ी देर बाद कोई बात आपसे करेगा। वो तो कहने लगे मर गया है तो बात कैसे करेगा। गौर नहीं फरमा रहे, ओए ओए ओए, सरकार ने फरमाया उसको उठा के घर ले गए। घर जाके सारे उसके ऐसे अकारे बाके, कोई रो रहा है, कोई इमाम की माज़अल्लाह तनकीस कर रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, या बैठे हुए अचानक तवज्जो फरमाए, जितना मजमा तशरीफ फरमाए, अचानक वो आदमी अपने मुंह से चादर हटा के उठ के बैठ गया और कहने लगा लोगो सुनो, लोगो सुनो, मैंने सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर बहुतान तराशी की है, मैंने गलती की है, मैंने फसाद किया है, मैंने फितना किया है, ये कह के मैं जो ही मरा हूं, मुझे ए हाकिम ए यौमुद्दीन के सामने लाया गया। वो भी नाराज थे और जितने फरिश्ते मुझे लेके गए सारे मुझ पे नाराज थे। उस वक्त कहा गया एक दफा इसे वापस भेज दो ताकि ये हमारी हकीकत बताए। ये कह के उस मरने वाले ने कहा ओ मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे पूरा खानदान, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, मैं तुम्हें इल्तिजा करता हूं, यही इमाम बरहक है। और नहीं फरमा, खुदा की कसम यही अभी क्या खबर क्या करें, ये इमाम बरहक है, यही कुल्ले दीन है, यही हुज्जत खुदा फिल आलमीन है, यही सब कुछ है। इनकी विलायत का इकरार करना जन्नत मिलेगी। अगर ये लफ्ज़ ना हो मैं पाबंद, इनकी विलायत का इकरार करना, ओ मेरे भाइयों मेरी वसीयत है, नसीहत है, इनका इकरार करना। जिन्होंने इनका इनकार किया 3 मरतबा कहा उसके लिए जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम है, कह के लेटा ऊपर कपड़ा, क्या तुम मर गया। इन्हीं को मानो है, यही बरहक हैं। बस आज पता है ये रात कौन सी है? आज जनाबे सैयदा की चीखें निकल रही। आज की रात आखिरी रात है मेरे इमाम की, 21 की रात है। आज तुम इमाम ज़माना की बारगाह में हम ताज़ियत भी पेश करते हैं आका की, और मेरा मौला ताज़ियत पे बैठे हुए हैं और ये मुंतज़िर हैं कि कौन इमाम, कौन हमारे मानने वाले हमें इमाम की ताज़ियत देते हैं। इसी आज के रात के हवाले से, कल मैंने अर्ज किया, रात के हवाले से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये रात, आज की रात कोई 10वीं की रात से कम नहीं। 10वीं की रात का थोड़ा सा हवाला दे के इधर मैं पलट के बाद वापस आता हूँ। 10वीं की रात मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास चिराग बुझा दो, जो रोना चाहते हैं खुदा के लिए मेरे साथ आ जाए। इमाम फरमाते हमारे घर में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। पाक बीबियाँ जो हमारे मजलिस में आती हैं, हमारे फजाइल सुनना नहीं आती, ये देखने आती हैं कि हमें रोता कौन है, हमारे गम कौन मनाता है। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास चिराग बुझा दो। जनाब अब्बास ने जब चिराग बुझाए ना, मेरे इमाम ने फरमाया जो भी जाना चाहता है रास्ते खुले हुए हैं, चले जाओ। जिन जिन का हाथ पकड़ के ले जाना चाहते हो उनको भी ले जाओ, बिल्कुल मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। एक वक्फा करके फिर इमाम ने फरमाया अब्बास चिराग बुझा दो, जला दो। अब जो जलाया ना सारे बैठे हुए हैं। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया मौला गए क्यों नहीं? कहा आका इमाम आपको छोड़ के जाए?
मौला हम आपको कैसे छोड़ के जाए? भाई ये कहा ना छोड़ के, हमें 70 मर्तबा कत्ल किया जाए और जिंदा किया जाए, आपकी नुसरत नहीं छोड़ेंगे। मैं लफ्ज कहूं, अब इमाम ने मदीने की तरफ देख के फरमाया, नाना तेरे भी सहाबी थे। हाय हाय, बहुत बड़ी बात है। नाना तेरे भी सहाबी थे, आ देख करबला में मेरे भी सहाबी हैं। तू बुलाता था, वो आते नहीं हैं। मैं भेजता हूं, ये जाते नहीं। अल्लाह अकबर। ये मंजर होने के बाद मेरे इमाम ने उस रात को खयाम की तरतीब बदल दी। अब्बास आज खैमे इस तरह लगा दी कि दरमियान में बीबियों के खैमे हों, एक कोने पे जनाब सज्जाद का खैमा हो, इनके चारों तरफ मेरे असहाब के खैमे लगा दे। इमाम का हुक्म था, जनाब अब्बास में मिल के जल्दी जल्दी ख़याम लग गए। और मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे साहबियों आज तुम्हारी आखिरी रात है, जितनी इबादत कर सकते हो कर लो। अल्लाह अकबर। जब इनकी इबादत की आवाज बढ़ी ना, आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, बस आवाज का बुलंद होना था। जनाब सज्जाद जो पर्दा गैबत में गशी नहीं आती इमाम को, गैबत में थे, पर्दा जो हटा ना, तुर्की गुलाम साथ बैठा है। जब ये आवाज सुनी ना, मेरे इमाम ने कहा, जाके मेरे बाबा को कहो मैं चल नहीं सकता, वो मेरे करीब आए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुर्की गुलाम भागता हुआ गया। आका जनाब सज्जाद बुलाते हैं। इमाम जल्दी कदम लेके आए ना, सज्जाद उठना चाहते हैं। इमाम बैठ के फरमाते, नहीं बेटा तू उठ नहीं सकता। पेशानी पे बोसा दिया, बैठ गए। क्या कहना है मेरा सज्जाद? मेरे इमाम ने कहा, बाबा सिर्फ इसलिए बुलाया है, ये आवाज किन की है? मेरे ख्याल मसाइब तो मैंने बहुत बड़ा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। मौला बाबा ये बताएं, ये आवाज किन की है? मेरे इमाम ने जवाब में फरमाया, ओ मेरा खजूर बेटा। जवाब तो आ गया ना। मेरे इमाम ने फरमाया, सज्जाद ये मेरे सहाबी हैं। जब कहा ना सहाबी हैं, उस वक्त मेरे इमाम ने कहा, बाबा इनकी आवाज मेरी फूफी जैनब के कानों पे नहीं पड़ रही। जब ये जुमला कहा ना, इमाम ने जनाब सज्जाद को गले लगा के और ज़्यादा ये जुमला कहा, सज्जाद आज की रात ऐसे रहने दे। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी बात है। ओ मेरा बेटा सज्जाद, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। बेटा सज्जाद आज की रात ऐसे रहना दे, आज हमारा इंतजाम है, कल शाम गरीबा आएगी। हाय हाय हाय, तू जानना तेरी ज़ैनब जाने। अजरकुम अल्लाह समझ गए ना, कल शाम गरीबा आएगी। सज्जाद तू जानना तेरी ज़ैनब जाने। अल्लाह अकबर। बस यहीं से मैं बदल के अब इमाम के, ये कल जब आए ना इमाम, जख्मी इमाम लेके आए दरवाजे पे, सारे साहबा रोते हुए, इमाम ने रोक के अपने साहबा से फरमाया, मेरे साहबियों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं से सीधे अपने अपने घरों में चले जाओ। कोई आदमी मस्जिद कूफा में ना ताकि बात ना पड़े, घर में चले जाओ। जब चले गए तो अब इमाम ने कहा, हसन मुझे अंदर लेके चलो। जब जनाब हसन लेके जाने लगे ना, कहा बाबा क्यों भेज दिया साहबा को? अब इमाम की आंखों में आंसू आए, रो के कहा, सज्जा हसन बेटा, कद कोतेला अमीरुल मोमिनीन की आवाज मेरी बेटियों ने सुनी हुई है। हाय हाय, मैं जख्मी हालत में अंदर जाऊंगा, मुझे देखकर उन्होंने रोना शुरू कर देना है, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मेरी बेटियों की आवाज कूफे वाले सुने। मैं कहूंगा मौला आज तू खुद मौजूद है, ये तेरा इंतजाम है। एक दिन आया यही ज़ैनब है, यही बाजार कूफा है, बरहना सर है, हाथ बंधे हुए हैं, बेपलाने ऊंट पे सवार है, और मलून कह रहा है लोगों आओ देखो, हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली। अजरुकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह अकबर। आओ आओ आओ, अली की बेटी बाजार में आ गई है। बस जो ही जर्राह बुलाते हैं, जर्राह अपना दवाई देते हैं, जख्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आ गई ना आज की रात, 21 की जो ही रात आई, सारे चारों तरफ सरकार आराम फरमा लेटे हुए हैं कि अचानक मेरा इमाम उठ के बैठ गया। उठ के बैठकर मेरे इमाम ने
باتیں کرتے کرتے صاحب لکھتے ہیں کہ کرتے کرتے اچانک امام نے وصیتیں شروع کی. بس وصیتوں کا کرنا تھا. بیویوں نے کوہرام برپا کر اللہ یا بتا ہے بابا اللہ اکبر. ہے جناب زینب نے بیویوں نے رونا شروع کیا. جو امام نے وصیتیں شروع کی, پہلی وصیت فرمائی میرے بعد تمہارا امام میرا بیٹا حسن ہوگا. اجرکم اللہ. حسن کے بعد ان کے بعد دوسرا تمہارا امام حسین علیہ السلام ہوگا. یہ کہہ کے امام نے جتنی اپنے اعزا تھے ساروں کا ہاتھ پکڑ کے امام حسن کے ہاتھ میں دیا. حسن ان کی حفاظت ہو, ان کی حفاظت کرنا, ان کے ہاتھ میں دیا. جناب عباس کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں دیا. پائنٹی کی طرف بی بی ام البنین کھڑی ہے. جناب عباس نے تب دیکھا کہ بابا نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا. ایک رنگ آتا ہے اللہ اکبر. اس وقت پاک بی بی نے کہا مولا کیا عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ذرا میرے بیٹے کو دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے. ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے. اس وقت میرے آقا نے کہا ام البنین گھبراؤ نہیں, جن کے لیے میں نے عباس لیا ہے ان کے حوالے کرتا ہوں. فرمایا میری زینب کہاں ہے؟ اللہ اکبر. میری بیٹی زینب کہاں ہے؟ فرمایا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب زینب قریب آئی, امام حسین قریب آئے. عباس کا ایک ہاتھ پکڑ کے امام حسین کے ہاتھ میں دیا, ایک ہاتھ پکڑ کے جناب زینب کے ہاتھ میں دے کے کہا میری بیٹی یہ تیرے پردوں کا محافظ ہے. اللہ اکبر. حسین یہ تیرا علم بردار ہے. یہ کہا روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی. میں کہتا ہوں مولا تجھے غسل بھی مل گیا, دفن بھی ہو گیا, مگر کربلا کا مسافر حسین تیرا لاشا پڑا رہا. لے آئینا والا کی شبیہ قیامت تک یہ شبیہات چلتی رہیں گی. ماتم علی. مومنین کرام, کل سے ہم مجالی سے تفسیر ٹھیک 9:15 بجے عمران نقوی کی تلاوت حدیث کے ساتھ شروع ہو جائے گی. 9:30 بجے شب علامہ زیب ممبر ہوا کریں گے. آپ حضرات وقت کی تبدیلی کو نوٹ فرما دیں.